Assalamu alaikum, my dear students. I am Friha Sufyan, your mathematics teacher. I warmly welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today, my topic is geometrical patterns on square grid. By the end of this lesson, you will be able to make or complete geometrical patterns on square grid according to one or two of the following attributes: shape, size, and orientation. So here we are going to study now. Basic thing is, what is square grid? Square grid is this one. Yes, this one. This one is square grid, in which we have all the squares over here with small size. Okay, so here we are going to make geometrical patterns on this square grid. So right now we are going to draw geometrical shapes according to these attributes, means these qualities, shapes, size, orientation. So first we are going to study about shape. So what is shape? Shape is that this is according to the shape. Which shape is over here? This one. This is a square. Inside the square we have a circle, bigger circle, this circle. Now we are going to have a rectangle. This one is a rectangle inside it, and now this one is a square, and this one, the middle of the circle, which have circle over here, and a triangle. Now I'm going to tell you that how we are going to draw it. So first thing is this: we are going to draw a complete big square, in which, just check this one out. This depends upon you, that how many squares, small squares you are going to take. So how many small squares you are going to take? So this depends upon you. So here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 squares drawn over here. So all will have equal, so because this is a square, so I have taken all 9, this one side also 9 squares, 9 squares and 9 squares. Then I have taken a ruler and taken a pencil and then drawn a straight line accordingly like this. And that line must be a bit harder one, okay, so that must be prominent. So right now we are going to draw a circle. अब सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे? इसी के अंदर मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है. देखिए आप कैसे, यहाँ से जो इसकी टिप है मिडल वाली, यहाँ से मैंने वहां तक एक आर्क ड्रॉ की है, एंड देन वहां से भी एक आर्क ड्रॉ करके, और इस तरह से कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में इसको जनरेट किया गया है. नाउ माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह से आप अंदर ही या बाहर उसकी रेक्टेंगल के, आपको पता है रेक्टेंगल में लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, और जो ब्रेथ है वो कम होती है. दिस इज द थिंग. सो 3 इस साइड से मैंने बॉक्सेस लिए, और 2 बॉक्सेस मैंने इस साइड से लेकर, मैंने, क्योंकि यहाँ से 2 होंगे तो सामने वाले भी 2 होंगे, और सामने 3 के सामने वाले भी 3 ही स्क्वायर होंगे. सो इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी. नाउ इसके अंदर मैंने रेक्टेंगल लिख भी दिया. सो राइट नाउ आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें 2 जो है साइज है इसका, मैंने लिया 2x2, मीन्स सारी साइड का जो है वो 2 की फॉर्म में लेकर मैंने रूलर से और पेंसिल से इसको बॉर्डर करके, ब्रॉड करके यहाँ ड्रॉ कर दिया जी. इसी तरह से मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने एक जो है वो 3 नीचे से 3 बॉक्सेस लिए, और उसके एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, 3 बॉक्सेस, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन लगाई. एंड देन मैंने क्या किया कि इसका मिडल चेक करना है. मैंने मिडल इसका है एग्जैक्टली ये 3rd वन, ये इसका मिडल यहाँ से लेकर मैंने यहाँ से यहाँ तक उसकी एक लाइन ड्रॉ कर दी विद द हेल्प ऑफ रूलर, और फिर वहां से भी दूसरी तरफ से भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बोथ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, बिल्कुल ऐसे. ये एक ट्राइंगल है. नाउ अब जैसे कि मैंने लिया था स्क्वायर 2 और 2 की फॉर्म में, बिल्कुल हर साइड उसकी 2 थी. इसी तरह से मैंने एक सर्कल को ड्रॉ करना है इसी स्क्वायर के अंदर से जी, ऐसे. यहाँ से मैंने एक कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ करना है, और पेंसिल की निब मैंने उठानी नहीं है, बिल्कुल ऐसे आपने इसको घुमा देना है, ठीक है. सो ये आपके पास एक सर्कल बन जाएगा. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, जी जनाब, इसी तरह से हम डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज एज वेल. साइज में जैसे कि छोटा, बड़ा और सबसे बड़ा हो गया ना, इसी तरह से हमने ये शेप्स को ग्रिड के ऊपर ड्रॉ किया है. देखिए ये एक बॉक्स के अंदर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, और उसके अंदर आपको नजर आ रहा है जैसे कि मैंने क्या ड्रॉ किया है, ट्राइंगल्स. कितनी ट्राइंगल्स ड्रॉ हो गई हैं? 4 ट्राइंगल्स. बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए नेक्स्ट, ये 1 बॉक्स था, 1 स्क्वायर था, ठीक है. 1 स्क्वायर के बाद आप ये चेक करें कितने स्क्वायर्स में आ रहा है जी, 1, 2, 3 स्क्वायर्स में.
3 स्क्वायर्स में एक और सर्कल मैंने ड्रॉ किया और उसके अंदर भी मैंने 4 ट्राइंगल्स इस तरह की से ड्रॉ कर दी। नाउ आप ये देखें कि ये कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस। 4 बॉक्सेस में मैंने इसी तरह से जो है एक सर्कल ड्रॉ किया और उसके अंदर इस तरह से 4 ट्राइंगल्स मैंने ड्रॉ कर दी। सो आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है कि इनमें पहले इस ब्लॉक का साइज सबसे छोटा है, देन ये आपको नजर आ रहा है कि ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। जी, ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन में आपकी 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं लैंडस्केप और सेकंड को हम कहते हैं पोर्ट्रेट। सो लैंडस्केप को आप पहले स्टडी कर लेते हैं। लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप है इट इज वाइडर देन इट इज हाइट। बेसिकली ये वाइड होता है ज्यादा, यानी इसकी हाइट कम होती है और इसकी विड्थ ज्यादा होती है। बिल्कुल। सो आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि ये मेरे पास है एक पैटर्न जो मैं इसको फॉलो करूंगी। ये पैटर्न में क्या है कि मैंने एक स्क्वायर के अंदर डिफरेंट 4 ट्राइंगल्स बना दी है। तो यही पैटर्न को मैं आगे फॉलो करती जा रही हूँ और हर एक में मैंने इस पैटर्न को फॉलो कर दिया। तो ये मेरे पास कौन सी ग्रिड बन जाएगी? बिल्कुल, ये मेरे पास लैंडस्केप फॉर्म में बनी है, क्योंकि यहाँ पर आप चेक करें ग्रिड का साइज, नीचे से आप चेक करें, यहाँ से है 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल, नीचे से ये 7 है और ऊपर से चेक करें, यहाँ से हाइट इसकी चेक करें 1 2 3 4। सो 4 की हाइट है। तो बेसिकली ये आपके पास क्या प्रेजेंटेशन है? बिल्कुल, ये आपके पास लैंडस्केप यानी लैंड के ऊपर ये स्केप हुआ है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी जमीन के ऊपर इसका रुतबा ज्यादा है। तो इस तरह से आप लैंडस्केप को याद कर सकते हैं, बिकॉज दिस वन इज वाइडर देन इट इज हाइट। इसकी हाइट से ज्यादा क्या है? इसकी विड्थ है। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज पोर्ट्रेट। जी, ये आपको चेक करें, ये आपके पास एक ग्रिड है। कौन सा ग्रिड है? स्क्वायर ग्रिड। इस स्क्वायर ग्रिड के अंदर जो प्रेजेंटेशन है वो इस फॉर्म में है, इट इज हायर देन इट्स वाइड। अब इसमें क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट है ये लैंडस्केप का। ये हाई ज्यादा होता है और लो कम होता है, मींस इसकी वाइडनेस जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू इट्स हाइट। सो इसकी प्रेजेंटेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। सेम हम एक स्क्वायर के अंदर अगर 4 ट्राइंगल्स को ही ड्रॉ करते हैं तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस ग्रिड के अंदर 4 नीचे से 4 स्क्वायर नीचे से लिए हैं और 1 2 3 4 5 6 7 जो है मैंने ऊपर से लेकर, तो मैंने इनको इसके अंदर वही पैटर्न को रिपीट कर दिया है, यानी कि एक स्क्वायर के अंदर 4 ट्राइंगल्स मैंने ड्रॉ कर दी हैं। वो कैसे की हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि 4 ट्राइंगल मैंने एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ लाइन से ड्रॉ कर दिया, फिर दूसरे कॉर्नर को यहाँ से जो उसके ऑपोजिट था, यहाँ से और यहाँ से ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इनको मैंने आपस में रूलर के थ्रू ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यानी इनके ऑपोजिट कॉर्नर्स को मैंने रूलर के थ्रू ज्वाइन कर दिया और बीच में आप इसको कोई भी कलर देकर इसको अच्छी सी प्रेजेंटेशन देके इसके पैटर्न्स बना सकते हैं, जो कि एक खूबसूरती इसके अंदर लेकर आएगा। Hope this concept is clear to you guys. We'll get back to you with more interesting concepts of mathematics. Take good care of yourself. Allah Hafiz.